Hello students, today's the topic is properties of ITF. There are some properties of the ITF on the basis of which the question will be solved. The properties are divided in 8 categories. Clear? One by one we are going to discuss about the properties, then we will solve the questions on the basis of these properties. And the first property is sin inverse sin x, means जिस रेशो का इनवर्स बाहर है वो ही रेशो हमारे पास अंदर बैठा हुआ है, तो रेशो और इनवर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे. वी विल गेट हियर लाइक x. In the same way, cos and inverse will cancel, you will get here x. Clear? ये हमारे को पता है बेटा कि हमने लास्ट टाइम किया था what is the range of these angles. In the case of sine, the range is minus pi by 2 to pi by 2. Clear? That is we have already studied. Now, tan to tan inverse cancel, answer will be x. Cot to cot inverse cancel, you will be here x. In the same way, secant to secant inverse cancel, you will get here x. जो भी यहाँ पर एंगल होगा, चाहे वो 30 है तो 30 डिग्री आ जाएगा, 60 है तो as it is 60 डिग्री आ जाएगा. Ratio and its inverse will cancel each other. And the second property is, now जो रेशो बाहर है उसी रेशो का इनवर्स अंदर है. अगेन द रेशो एंड इट्स इनवर्स विल कैंसल ईच अदर एंड यू विल गेट हियर लाइक x. एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अगर यहां पर हमारे पास रेशो है तो रेशो के साथ हमेशा एंगल होता है बेटा. क्लियर? बट यहां पर अगर रेशो का इनवर्स है, इनवर्स के साथ हमेशा वैल्यू होती है बच्चे हमारे पास. क्लियर? नाउ दिस वैल्यू ऑफ इन द केस ऑफ साइन इनवर्स बिलोंग टू विद इन दिस डोमेन. क्लियर? इन द सेम वे रेशियो एंड इनवर्स विल कैंसल, you will get here x and you will get here x. Ratio and the inverse will cancel, you will get here x. Same value you will get here, but always remember that this value should belong to this domain values. Clear? And also it will cancel to its, you will get here x. Now about the third property is sin इनवर्स माइनस x, मीन्स हमारे पास बाहर सारे 1 by 1 रेशियोज का इनवर्स होगा, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का इनवर्स होगा, एंड विद इन द ब्रैकेट्स वी हैव इट्स नेगेटिव एंगल. क्लियर? तो साइन विल बिकम आउटसाइड, यू विल गेट हियर माइनस साइन इनवर्स, कोस इनवर्स पाई माइनस cos inverse x, tan inverse minus x, you will get here minus tan inverse. ध्यान रखना ये थोड़ी हमारे पास क्रिटिकल है. cot inverse minus x, you will get here pi minus cot inverse x. In the case of cosecant square x, inverse minus x, the minus will come out and you will get here minus cosecant inverse x. Secant inverse minus x, you will get here pi minus secant inverse x. Now, the property number 4 is sin inverse 1 by x. Sin inverse 1 by x. ध्यान रखना बेटा ये प्रॉपर्टी, यहां पर इस रेशियो का क्या हो रहा है, इनवर्स. साइन का इनवर्स हमारे पास क्या होता है, रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसिकेंट. जैसे ही यहां पर रेशियो का रेसिप्रोकल हुआ, यहां पर हमारे पास एंगल का भी क्या हो गया, रेसिप्रोकल. मींस जो वैल्यू होगी, जो टर्म्स या कंडीशन यहां पर होगी, उसका रेसिप्रोकल होकर के यहां पर आ जाएगा बेटा हमारे पास. मैंने आपको क्या बताया है, इनवर्स के साथ हमेशा वैल्यू होती है हमारे पास. क्लियर? अगर 1 by 2 है तो वहां पर जाके हो जाएगा ये 2. cos का रेसिप्रोकल secant
and 1 by x का रेसिप्रोकल x, tan inverse का रेसिप्रोकल cot inverse and the 1 by x का रेसिप्रोकल x. Clear? That is about R for properties. And next properties are like this. Now the property number 5 is sin inverse x plus cos inverse x. Means यहाँ पर sin inverse होगा और sin का co होगा cos inverse. दोनों के लिए वैल्यू सेम होगी and it will be equal to pi by 2. tan inverse x cot inverse, यानी कि एक तरफ tan inverse एक तरफ cot inverse और दोनों की वैल्यू सेम होनी चाहिए हमारे पास, that will be equal to pi by 2. मतलब मीनिंग सेम है हमारे पास, ठीक है. secant inverse x plus cosecant inverse x is equal to pi by 2. Now next property is tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon x minus y minus 1 minus x into y when x into y less than 1, यानी कि इन दोनों एंगल्स का जो प्रोडक्ट होता है वो लेस देन 1 होना चाहिए हमारे पास. क्लियर? एंड tan inverse x minus tan inverse y will be equal to tan inverse x minus y upon 1 plus x into y when x into y greater than minus 1. tan inverse x plus tan inverse y plus tan inverse z will be equal to tan inverse x plus y plus z minus xyz upon 1 minus xy minus yz minus zx. Next property is 2 tan inverse की हमारे पास 3 formulas हैं, that is tan inverse, sin inverse, cos inverse. 2 tan inverse के tan inverse 2x upon 1 minus x square, sin inverse 2x upon 1 plus x square, cos inverse 1 minus x square plus 1 plus x. Here. Now property number 8 is 2 sin inverse x equal to sin inverse 2x into 1 minus x. जो एंगल यहां पर होगा वही एंगल यहां पर होगा, उसी एंगल का स्क्वायर यहां पर होगा बेटा हमारे पास. जो x की वैल्यू यहां पर होगी वही वैल्यू हमारे पास यहां पर. क्लियर? सो दैट इज द प्रॉपर्टीज. आगे जो जो सी प्रॉपर्टी हमारे को यूज होती रहेगी उन प्रॉपर्टीज को हम लिखते रहेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे. नाउ कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं बेटा हमारे पास जो हम ऑलरेडी +1 में कर चुके हैं, वो भी हमारे पास क्वेश्चंस में 1 बाय 1 कुछ क्वेश्चन में यूज होंगे, तो एक बार उसको भी हम रिकॉल कर लेते हैं. sin 2x is equal to sin 2 sin x into cos x equal to, यही sin 2x का फॉर्मूला tan के लिए भी होता है बेटा हमारे पास 2 tan x upon 1 plus tan square x. Now cos 2x cos square x minus sin square x. ध्यान रखना अगर यहां पर एंगल जो भी होगा बट यहां पर एंगल आकर के उस एंगल का हाफ हो जाएगा हमारे पास. And also cos 2x is equal to 2 cos square x minus 1. Cos 2x also equal to 1 minus 2 sin square x. Cos 2x is also equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x. इसको और ये वाले फॉर्मूले को देखो बेटा, कुछ आपको डिफरेंस नजर आता है, सिर्फ एक डिफरेंस है प्लस माइनस का. ये फॉर्मूला है साइन का तो यहां पर प्लस है, ये फॉर्मूला है tan का तो यहां माइनस है. मींस एस पी साइन के फॉर्मूले में यहां पर प्लस आएगा, टी एम ट्रेडमार्क tan है तो यहां पर माइनस होगा. क्लियर? नाउ 1 minus cos 2x is equal to 2 sin square x. 1 plus cos 2x is equal to 2 cos square x. And also to be sin x, यहीं से फॉर्मूला बना बेटा हमारे पास रूट 1 minus cos 2x upon 2. cos का फॉर्मूला यहीं से बना है हमारे पास 1 plus cos 2x upon 2. And also to be
इन दोनों को यूज करके मैंने एक tan का फॉर्मूला बनाया हुआ है, tan x इज इक्वल टू रूट 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x. Clear? Now on the basis of these formulas and on the basis of property, start the questions. Now prove that tan inverse cos x upon 1 plus sin x is equal to pi by 4 minus x by 2. अब हमारे पास खाली cos का फॉर्मूला तो है, बट यहां पर यूज करके हमारे पास tan इनवर्स मींस अगर बाहर tan इनवर्स है तो अंदर भी सारे को सॉल्व करके tan ही बनना चाहिए, बिकॉज वी नो दैट tan इनवर्स x एंड tan x इज इक्वल टू x. क्लियर? तो यानी कि अंदर हमने tan क्रिएट करना है, तो दैट इज हम इसको भी चेंज करेंगे, cos को भी, और हम इस साइन को भी चेंज करने वाले हैं. लाइक लेफ्ट हैंड साइड को अगर मैं सॉल्व करता हूं बेटा, तो tan इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस x एंड 1 प्लस cos पाई बाय 2 माइनस x. अच्छा, यहां पर मैंने पाई बाय 2 माइनस क्यों लगाया, क्योंकि वैसे भी मेरे को इन दोनों के बीच में माइनस साइन ही चाहिए. एंड आल्सो मेन रीजन इज पाई बाय 2 माइनस मींस लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल रेशियोज आर टू बी पॉजिटिव. नाउ tan इनवर्स दैट इज साइन का फॉर्मूला यूज करेंगे हम, दैट इज 2 साइन पाई बाय 4 माइनस x बाय 2 into cos pi by 4 minus x by 2, and also to be 1 plus cos, that is 2 cos square pi by 4 minus x by 2. 2 से 2 cancel, 1 cos से 1 cos cancel, and that is tan inverse sin this upon cos. So sin upon cos, that is tan pi by 4 minus x by 2. tan जो रेशियो बाहर है उसी का इनवर्स अंदर है, जो रेशियो यहां पर है इनवर्स बाहर है, रेशियो इनवर्स will cancel each other and you will get here pi by 4 minus x by 2, which is equal to the right hand side. Clear? Now write in the simplest form sin inverse sin x plus cos x upon root 2. Here the LCM will split. Now splitting the LCM like this, sin inverse 1 by 2 root 2 sin x plus 1 by 2 root 2 cos x. क्योंकि बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर भी सारी कंडीशन साइन में कन्वर्ट हो जाए, बिकॉज साइन इनवर्स एंड साइन एक्स बोथ रेशियो विल कैंसल ईच अदर, यू विल गेट हियर x. नाउ साइन की ये वैल्यू देखो, अगर ये साइन है तो कोस की ये वैल्यू कहां पर होती है, अगर ये कोस है तो साइन की ये वाली वैल्यू कहां पर होती है, किस एंगल पर होती है हमारे पास. द मीनिंग इज दिस. नाउ साइन इनवर्स साइन एक्स इनटू कोस की ये वैल्यू होती है हमारे पास कोस पाई बाय 4. नाउ प्लस कॉस एक्स, साइन की ये वैल्यू कहां पर होती है हमारे पास, दैट इज साइन पाई बाय 4. अगर ध्यान से देखो आप इस ब्रैकेट के अंदर का पोर्शन, आपको याद आएगा एक फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन
b. So that is sin inverse sin a plus this. तो साइन ए रेशियो ने इनवर्स को कैंसिल कर दिया, तो यू विल गेट हियर x plus pi by 4. So that is the simplest form of this given condition. Now in this question tan inverse 1 by 7 plus tan inverse 1 by 13 should be equal to tan inverse 2 by 9. हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, बट यहां पर हमारे को कौन सी प्रॉपर्टी यूज होने वाली है, दैट इज tan inverse x plus tan inverse y will be equal to tan inverse x plus y upon 1 minus x into y. That is x and that is y. Clear? So left hand side को अगर मैं सॉल्व करता हूं बेटा, तो tan inverse x plus tan inverse y, तो that is tan inverse x plus y. What is x here? 1 by 7 plus 1 by 13 upon 1 minus x into y means 1 by 7 into 1 by 13, like this. That is tan inverse, अगर मैं ऊपर एलसीएम लेता हूं बेटा, हमारे पास एलसीएम आएगा 91, तो दैट इज 13 plus 7. क्लियर? अगर मैं यहां पर एलसीएम लेता हूं, अगेन विल बी द 91, तो दैट इज 91 minus 1. एलसीएम से एलसीएम कैंसल. नाउ tan inverse this plus this 20 by 90. This to this cancel and you will get here tan inverse 2 by 9, which is equal to your right hand side. Clear, student? Now we have to prove cos inverse x is equal to 2 sin inverse root 1 minus x by 2. Now अब हम इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व करके द कंडीशन विल बिकम इक्वल टू द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ दैट इज 2 sin इनवर्स, मैं इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहा हूं स्टूडेंट्स, रूट 1 माइनस x अपॉन 2. नाउ द क्वेश्चन इज दिस, यहां पर मैं x को क्या पुट करूं कि मेरे पास इस सारे को सोल्व करके साइन इनवर्स बाहर है ना, तो अंदर भी मेरे पास एक साइन की कंडीशन क्रिएट हो जाएगा. क्लियर? सो आई एम पुट x इज इक्वल टू cos थीटा. x इज इक्वल टू cos थीटा. मैंने cos ही क्यों सेलेक्ट किया? बिकॉज आई हैव द फॉर्मूला फॉर 1 माइनस cos and 1 plus cos. क्लियर? तो 1 plus cos x को मैंने एज्यूम कर लिया cos थीटा, तो यहां से जरा थीटा की वैल्यू क्या बनेगी मेरे पास, दैट विल बी cos इनवर्स x. क्लियर? नाउ 2 sin इनवर्स रूट 1 माइनस cos x अपॉन 2. ठीक? सो दैट इज 2 sin इनवर्स 1 माइनस cos का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस cos का, दैट इज 2 sin इनवर्स स्क्वायर x by 2 अपॉन 2. 2 से 2 कैंसल. अब यहां पर साइन स्क्वायर है और ऊपर रूट है, तो रूट विल कैंसल द स्क्वायर. सो यू विल गेट हियर 2 sin इनवर्स sin x by 2. रेशो और इनवर्स, साइन इनवर्स बाहर था और अंदर भी साइन का रेशो बन गया, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे. यू विल गेट हियर 2 ये और x by 2.
कैंसिल विद दिस एंड यू विल गेट हियर ओनली x, और x की वैल्यू मेरे पास क्या है बच्चे, दैट इज, अच्छा यहां पर मैंने x को एज्यूम क्या किया था, cos थीटा, तो यहां पर मैं इसको थीटा लिख देता हूं बच्चे, दैट इज थीटा बाय 2, दैट इज थीटा बाय 2 एंड आल्सो टू बी थीटा बाय 2। तो मेरे पास यहां पर क्या बच गया, दैट इज ओनली थीटा। तो थीटा की वैल्यू मैंने यहां पर क्या किया बेटा, cos इनवर्स x, ठीक है, और वो ही तो मेरे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड थी, दैट्स इक्वल टू योर लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन। क्लियर? नाउ tan 1/2 sin inverse 2x upon 1 plus x square plus 1/2 sin inverse 1 minus x square upon 1 plus x square is equal to 2x upon 1 minus x square. Clear? Now अब बाहर हमारे पास tan x है ना, tan है रेशो, तो अंदर भी सारे को सोल्व करके हमारे पास tan इनवर्स बनना चाहिए। अगर इनवर्स बाहर है तो अंदर वो रेशो बने, अगर बाहर रेशो है तो अंदर वो ही इनवर्स बने। नाउ द क्वेश्चन इज दिस, हम यहां पर x की क्या वैल्यू पुट करें कि ये कंडीशन साइन इनवर्स है तो बाहर अंदर साइन का फॉर्मूला बन जाए, बाहर कोस इनवर्स है तो x की क्या वैल्यू पुट करूं, पुट करने के बाद अंदर कोस का ही कोई फॉर्मूला बन जाए। तो नाउ दोनों के लिए मैं बता रहा हूं बेटा आपको, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड हियर, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा। क्लियर? और यहां से मेरे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, दैट इज tan इनवर्स x। क्लियर? तो जहां पर मेरे को x दिख रहा है, I will put x is equal to tan theta. Clear? Now tan 1/2 sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Clear? And here plus 1/2 cos inverse 1 minus tan square theta plus 1 plus tan square theta। अब ये किसका फॉर्मूला बन चुका है, इट इज द फॉर्मूला ऑफ sin 2 theta, इट इज द फॉर्मूला ऑफ cos 2 theta, दैट इज tan 1/2 sin inverse sin 2 theta plus 1/2 cos inverse cos 2 theta। क्लियर? रेशो विल कैंसल द इनवर्स, और इनवर्स जो है वो रेशो को कैंसिल कर देगा। यू विल गेट हियर tan 1/2 into 2 theta plus 1/2 into 2 theta। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, व्हाट इज लेफ्ट हियर, tan 2 theta, tan 2 theta। क्लियर? थीटा प्लस थीटा दैट इज 2 theta, बट हमारे पास वहां पे थीटा की वैल्यू कितनी है, दैट इज tan 2 थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या है, tan इनवर्स x। क्लियर? अब जरा 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला ओपन करना, tan 2 tan इनवर्स का क्या है हमारे पास, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर। रेशो विल कैंसिल द इनवर्स, ये दोनों को कैंसिल कर देंगे, यू विल गेट हियर 2x upon 1 minus x square will be equal to the right hand side। Okay बेटा? Now solve tan inverse
1 minus x upon 1 plus x is equal to 1 by 2 tan inverse x. Solve means you have to find the value of x which satisfies the given condition. Now अगर मैं इसको ध्यान से देखो बेटा तो मेरे पास ये फॉर्मूला है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू माइनस है ना बीच में, तो माइनस का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा दैट इज x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई. बट हियर x की जगह पे यहां पर क्या है बेटा हमारे पास 1 और y के प्लेस पर क्या है x. ठीक है, तो यानी कि मेरे पास ये फॉर्मूला बनने वाला है, ये वैल्यू किसकी है बेटा हमारे पास x की और ये वाली वैल्यू किसकी है y. अगर मैं इस कंडीशन को ऐसे लिख दूं tan इनवर्स 1 माइनस x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू x इज इक्वल टू 1 बाय 2 tan इनवर्स x. Clear? So that is the formula of tan inverse 1 minus tan inverse x is equal to 1 by 2 tan inverse x. अब ये भी tan inverse x है और ये भी tan inverse x है बेटा हमारे पास, तो इसको मैं यहां शिफ्ट करने वाला हूं बेटा. बट tan की वैल्यू 1 कहां पर होती है हमारे पास पाई बाय 4, तो इस कंडीशन को मैं डायरेक्ट इसके प्लेस पर क्या लिख रहा हूं पाई बाय 4 इज इक्वल टू 1 by 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, ये वाला तो वहां जाके प्लस हो जाएगा हमारे पास. अब tan इनवर्स x यहां पर कोएफिशिएंट है 1 by 2 और यहां पर है 1, तो मैं सारे को सोल्व करके आई विल गेट हियर पाई बाय 4 3 by 2 tan इनवर्स x. क्लियर? अब 3 by 2 इसके साथ क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहां पर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, मींस 3 2 जा, और जब यहां पे आके क्रॉस होगा तो दैट विल बी पाई बाय 6, तो दैट इज tan इनवर्स x. अब ये इनवर्स जब यहां पर आएगा बेटा हमारे पास तो क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू tan पाई बाय 6. ठीक है, और tan पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री. tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बच्चे हमारे पास 1 by root 3. So that is about how to solve given condition for the value of x. अगर आप ये वैल्यू दोनों साइड पुट करते हो you will the left hand side become equal to the right hand side. Clear students? Now solve sin bracket sin inverse 1 by 5 plus cos inverse x is equal to 1. ठीक है, अब मैं अगर इस साइन को यहां शिफ्ट करता हूं तो वहां पर जाके क्या बन जाएगा वो साइन इनवर्स 1. क्लियर? तो दैट इज साइन इनवर्स 1 by 5 प्लस cos इनवर्स x, और ये जब साइन यहां पर आएगा तो दैट विल बिकम साइन इनवर्स 1. क्लियर? दैट इज साइन. अब साइन की वैल्यू 1 कहां पर होती है एट द एंगल ऑफ 90 मींस पाई बाय 2, so that is sin inverse 1 by 5 cos inverse x and that is pi by 2. अब राइट हैंड साइड में तो पाई बाय 2 क्रिएट हो गया, क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में भी पाई बाय 2 क्रिएट हो जाए हमारे पास? हमारे पास एक प्रॉपर्टी है बेटा लाइक साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2. मींस साइन इनवर्स ये साइन इनवर्स 1 by 5 अगर इसको में ऐड हो जाए cos इनवर्स 1 by 5 मींस एडिंग
both side cos इनवर्स 1/5। हमारा कुछ रिजल्ट बनेगा ये काम करने से। cos इनवर्स 1/5 को यहां भी प्लस कर रहा हूं मैं और यहां भी प्लस कर रहा हूं, लाइक sin इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स 1/5 प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू pi/2 प्लस cos इनवर्स 1/5। मैंने कुछ नहीं किया, cos इनवर्स 1/5 को यहां भी ऐड कर दिया और यहां पर भी ऐड कर दिया। ये सारी कंडीशन मेरे पास क्या बन गई, लाइक दिस, यानी कि cos इनवर्स ना sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, दैट इज pi/2 प्लस cos इनवर्स x pi/2 प्लस cos इनवर्स 1/5। pi/2 से pi/2 कैंसल एंड दैट इज हियर cos इनवर्स x इक्वल टू cos इनवर्स 1/5। दोनों तरफ सेम रेशियो का इनवर्स है, they will cancel to each others and you will get here x is equal to 1/5. So that is about ITF chapter number 2, means properties of the ITF and some domain and range based questions of the ITF. So that is the completion of the chapter.